Hello students. As I told in my previous video that I will start making videos for the loop programming, and the loop programming is the base of programming. Main logic starts from here itself. Okay, so in this video I will discuss two programs. One program to find the sum of digits and another program to find the reverse of the number. Okay, so here don't learn this particular program which I am going to teach. The technique, the logic which I will teach in this video, that you must remember. The logic, the technique which I will use here. And please remember that logic, that technique, and use that technique or logic in other programs as a tool. Okay, so few basic logical things I will tell you. So don't try to learn the program, just try to learn the logic, what logic or what technique I am using in this program. Please remember that, and these logics are very important. The technique or the logic which I will tell you, that will be used in most of the programs of number. Okay, जो टेक्निक या लॉजिक हम बताएंगे वो नंबर की प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्राम्स में यूज़ होगा. प्रोग्राम याद करोगे तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बस लर्न कर पाओगे. तो टेक्निक याद करोगे तो उस टेक्निक को कई प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ से ध्यान से सुनना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जावा का, कि लूप का, कि write a program to accept a number and find the sum of digits of that number. Sum of digits of that number means consider the value of n is 372. So the output should be sum of digits equal to 2 plus 7 9, 9 plus 3 12. It should be equal to 12. So we are going to find the sum of digits of this number. Okay. So for this, before discussing the program, let me tell you the basic logics, the important logic which I am going to use in this program. The logic is what? When we module any number, when we module any number by 10, you know the modulus operator? When we module any number by 10, we get unit place digit. किसी भी नंबर को जब हम 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिलेगा. ठीक है. और किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस, यू नो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स कोशेंट, सो हमें तो नंबर में से यूनिट प्लेस वाला डिजिट हट जाएगा. मतलब देखो यहाँ पे कोशेंट में 3 नहीं है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट हट गया. यही लॉजिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो हम कई प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे. तो ये मैजिक नहीं है. देखो 573 को तुम अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स 7, then 7 times 70, the remainder will be 3. You can see the remainder is what? 3, and the quotient is what? 57. This is not a magic, and this is only for the integers. This rule which I am telling you is for the integers only. In case of fractional value, here you will get 57.3. So I am talking about integers. This rule is for the integers only. Okay. So again I am repeating. If you module a number by 10, you will get unit place digit, and when you divide a number by 10, the unit place digit will be removed. Okay, please remember this. Now 573 by 10, we are getting 57. Now 57 by 10, you will have 5. Again the unit place digit will be removed. Now 5 by 10, now please remember this calculation also. 5 by 10 will be 0, and 5 modulus 10 will be 5. This calculation I am going to tell you. When you divide a smaller number by a greater number, मतलब यहाँ 5 छोटा नंबर है, 10 बड़ा नंबर है, तो जब छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये कैलकुलेशन होता है. ध्यान रखना. मान लो 5 को हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ क्वोशेंट 0 आएगा, और रिमाइंडर जो है हम दोनों में जो छोटा होगा, 10 और 5 में छोटा क्या है? 5 है, तो 5 आएगा. ये कैलकुलेशन याद रखना, कई जगह यूज़ होगा, और ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए इम्प्लीमेंट होता है. ऐसा कैलकुलेशन याद रखना कि जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट हमेशा 0 आता है, और रिमाइंडर उन दोनों में जो छोटा होता है. तो 5 by 10 की वैल्यू 0 आएगी, जो क्वोशेंट है.
और 5 मॉडुलस 10 की वैल्यू 5 आएगी, जो कि रिमाइंडर है यहाँ पे देखो। बात समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन याद रखना, और यही कैलकुलेशन और यही ट्रिक हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ये इंपोर्ट करना, क्लास, मेन फंक्शन, स्कैनर, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जावा फंडामेंटल्स में, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, नंबर इनपुट ले रहे हैं एन में। एन की वैल्यू मान लो सेम हमने वैल्यू ली 573। ओके, 573। ना यहाँ पे डी की वैल्यू, एक वेरिएबल लिया हमने डी, सम की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0 से। जब भी कई नंबर्स का सम करना होता है तो ये टेक्निक है कि एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर। ओके, तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज की। अब ध्यान दो, यहाँ पे n की वैल्यू है 573, ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप में जाएगा। 573 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, सो कंट्रोल लूप में जाएगा। तो n मॉडुलस 10, as I told, when we module a number by 10 we get unit place digit। तो यहाँ पे 573, n की वैल्यू 573 है, 573 मॉडुलस 10 will be 3, so the variable d will have 3। ओके, मतलब हमें यूनिट प्लेस डिजिट मिल गया, एक डिजिट हमने निकाल लिया। अब उसका क्या करेंगे, जो डिजिट हमने निकाला उसका सम करेंगे। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, जो डिजिट हमने निकाला उसका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो सम की करंट वैल्यू कितनी है, 0, और जो डिजिट हमने निकाला है वो 3 है, तो 0 प्लस 3 होगा, और सम में ही स्टोर हो जा रहा है, तो सम की वैल्यू 0 से 3 हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया कि 10 से डिवाइड करके एक डिजिट निकाला जो कि 3 था, मॉड्यूल करके डिजिट निकाला, और उस डिजिट को हमने सम कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, अब उस डिजिट को हमने यूज़ कर लिया। अब ये चीज़ यूज़ अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग हो, यहाँ पे डिजिट निकाल के हमने जोड़ लिया, किसी प्रोग्राम में कुछ करेंगे, किसी प्रोग्राम में कुछ करेंगे। ये जो डिजिट निकाला उसका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज़ होगा। तो मेन टेक्निक यही है कि हम 10 से डिवाइड करके डिजिट मॉड्यूल करके डिजिट निकालेंगे, फिर उस डिजिट का जो भी प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट वो करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें उस डिजिट को जोड़ना है, तो हम उस डिजिट को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे सम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डिजिट यूज हो चुका, तब उसको हम 10 से डिवाइड करके हटा देंगे ताकि हमें नेक्स्ट डिजिट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 573 है, देखो 573 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 57 हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट हट जाएगा और वो n में ही स्टोर हो जाएगा, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब n की वैल्यू हो जाएगी 573, सॉरी 57। ठीक है, तो हम लॉजिक क्या है कि हम 10 से मॉड्यूल कर रहे हैं, मॉड्यूल करके डिजिट निकाल रहे हैं, जो डिजिट निकला हमने यहाँ पे उसको जोड़ दिया। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम होगा। ठीक है, उस डिजिट का जो भी यूज़ करना होगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद उस डिजिट को यूज़ करने के बाद उसको 10 से डिवाइड करके हटा देंगे। यही मेन लॉजिक है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब n की वैल्यू 57 हो गई, कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा, ये वर्किंग मैंने बताया ऑलरेडी। तो अब n की वैल्यू 57 है, अब ये कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में आएगा, तो 57 मॉडुलस 10, अब इस बार हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 को हमने हटा दिया, 10 से मॉड्यूल करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिल गया, 7 मिला, डी में क्या मिला, 7। अब उस डी को हम जोड़ लेंगे, तो सम की करंट वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 7 10 होगा, और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 7 को भी यूज़ कर लिया, तो उसको भी 10 से डिवाइड करके हटा दें, तो 10 से डिवाइड करेंगे 57 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और n में स्टोर हो जा रहा है, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर कंट्रोल यहाँ से वापस आएगा, अब n की वैल्यू हो चुकी है 5, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप में आएगा। तो अब हमें 5 मॉडुलस 10, 5 को 10 से मॉड्यूल करेंगे, तभी मैंने बताया कि जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से मॉड्यूल करते हैं तो छोटा नंबर मिलता है एज अ रिमाइंडर। देखो अभी हमने कैलकुलेशन बताया, रिमाइंडर अगर 5 को 10 से मॉड्यूल करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ पे डी की क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 5 मॉडुलस 10 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, लास्ट डिजिट मिल रहा है हमें। अब उसको भी जोड़ लें, यहाँ पे जोड़ लें, तो ध्यान दो सम की वैल्यू हो चुकी है 10, सॉरी सम की वैल्यू हो चुकी है 10, और यहाँ पे डी क्या मिला हमें, 5 मिला।
तो 10 + 5 15 होगा और सम में स्टोर हो जाएगा, तो सम की वैल्यू चेंज हो गई 15 हो जाएगी। और n/10 करेंगे तो 5/10, 5/10 छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो तो क्वेश्चन 0 आता है। देखो 10 से 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई, 0। n की वैल्यू क्या हो गई, अब 0 हो गई। अब कंट्रोल फिर यहाँ से क्लोजिंग से वापस आएगा। अब n की वैल्यू हो चुकी है 0 और 0 हो गई तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो लूप कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। अब ध्यान दो, हमने किया क्या कि 10 से मॉड्यूल करके डिजिट निकाला, उस डिजिट को हमने यहाँ पे जोड़ा। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, जिस प्रोग्राम में जो करना हो इस प्रोग्राम में हमें जोड़ना था। तो डिजिट निकाल लेंगे, उसका जो भी यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद से 10 से डिवाइड करके हटा देंगे उस डिजिट को, ताकि हमें नेक्स्ट डिजिट मिल सके। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। 10 से डिवाइड करने पे कंटिन्यूसली डिवाइड करोगे नंबर को तो 0 हो जाता है। तो नंबर यहाँ पे n के लिए जब 0 हुई, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंट्रोल लूप से बाहर आया। तो अब हमारे पास सम ऑफ डिजिट नंबर था हमारा 537 आई थिंक था। तो हमें क्या, हम इसका जो सम करेंगे तो 15 आया, जो कि सम स्टोर है। देखो, तो हम सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम। ठीक है, तो सम की वैल्यू मतलब सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 15 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स का। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा हाउ टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। तो उस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो इसको बताते हैं अभी हम। सो दूसरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। मतलब हमने 123 इनपुट लिया तो उसका रिवर्स 321 होगा। तो ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ देखो, प्रीवियस प्रोग्राम जो मैंने बताया अभी सम ऑफ डिजिट्स वाला, लॉजिकली इस प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन का चेंज हम करेंगे तो हमारा रिवर्स वाला प्रोग्राम बन जाएगा। सिर्फ एक लाइन का चेंज है, सिर्फ लॉजिकली देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली वन लाइन। देखो दिस लाइन, instead of sum equal to sum plus d, I will write there in that program rev equal to, here I will take instead of sum I will take a variable rev. Okay, instead of sum equal to sum of d I will write rev equal to rev into 10 plus d. लॉजिकली सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन का डिफरेंस है। और वेरिएबल नेम सम भी रखते तो चलता, लेकिन रिवर्स निकाल रहे हैं तो एक प्रॉपर वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकली सिर्फ हम इंस्टेड ऑफ सम इक्वल टू सम प्लस डी हम क्या लिखेंगे, रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस डी। देखो पिछले प्रोग्राम में सब वही चीज़ है, सम की जगह पे हमने रिव वेरिएबल का यूज़ किया है क्योंकि रिवर्स निकालना है। सम भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर नेम होना चाहिए। इस वेरिएबल का नेम ऐसा प्रॉपर होना चाहिए कि उस वेरिएबल के नेम से ही पता चले कि वेरिएबल हम प्रोग्राम में किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, so please be careful, and you can see only this line I have changed. So I'm going to trace this program. Look at the screen carefully. Consider I am taking the same example 123 and I'm going to find the reverse of this. That should be 321. So here one variable d is there, as you know, to extract a digit, and one more variable rev I have taken here instead of sum to store the reverse of the number. तो इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 123, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में जाएगा। n मॉडुलस 10, 10 से मॉड्यूल करने पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब देखो रीव की करंट वैल्यू 0, 0 इंटू 10 होगा 0, 0 प्लस डी, 0 प्लस 3 हो जाएगा 3, और रीव में स्टोर हो जाएगा। तो रीव की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब डी को हमने यूज़ कर लिया, अब डी को 10 से डिवाइड कर देंगे, n/10, n/10 की वैल्यू होगी 12 और n में ही स्टोर हो जाएगी, तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके, देन फ्रॉम द क्लोजिंग कंट्रोल विल गो बैक हियर। नाउ द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 12, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में। n मॉडुलस 10, अब d में क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। अब 3 हट चुका है, 10 से मॉड्यूल करेंगे, 12, n की वैल्यू 12 है, तो 12 मॉडुलस 10 2 होगा, d में स्टोर हो जाएगा। अब रीव की वैल्यू कितनी है, 3 ऑलरेडी है। देखो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस डी 32, तो अब रीव की वैल्यू हो जाएगी 32। मतलब रीव की वैल्यू 3 थी, 3 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 30 हुआ, डी ऐड हुआ 32 और रीव में स्टोर हो गया,
तो रीव की वैल्यू चेंज हो गई, 32 हो गई। अब n/10, n की वैल्यू 12 है, 12/10 हो जाएगा 1, तब n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1, कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, 1 मॉडुलस 10, अब मिलेगा 1, d की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। 1 को 10 से मॉड्यूल करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 मिला, d की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे आएंगे, रीव की करंट वैल्यू देखो 32 है, ऑलरेडी 32 है, इंटू 10 320 प्लस 1, डी की वैल्यू 1 है, 321, और रीव में ही स्टोर हो जाएगा, तो रीव की वैल्यू हो जाएगी 321, और फिर n को 10 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू 1 है, तो 1/10 क्या आएगा, देखो 0 आएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा फिर से। अब 0 नॉट इक्वल टू 0, जैसे n की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आया, यहाँ पहुंचा, तो देख सकते हो रिवर्स में नंबर हमने क्या लिया था 123, और उसका रिवर्स क्या मिला हमें 321, जो कि किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, रीव में। तो लूप से बाहर आके यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देंगे, रिवर्स नंबर इक्वल टू रीव, तो रीव वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पिछले प्रोग्राम में सिर्फ हमने लॉजिकली एक लाइन चेंज किया लॉजिकली, और हमें ये रिवर्स नंबर वाला प्रोग्राम मिल गया। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, हाउ टू फाइंड द रिवर्स ऑफ एनी नंबर, ये भी कई जगह यूज़ होगा, तो ये बेसिक लॉजिक्स हम तुम लोग को दे रहे हैं, सब लॉजिक्स याद रखो, ये लॉजिक्स किसी न किसी प्रोग्राम में एज अ टूल यूज़ होंगे, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। So for this video, this much only. In next video, I will come with 2 more programs. In that programs also, I will use the same technique. So please try to understand and try to learn the techniques, the logics only. Don't try to learn the program. Okay. So thank you students for this video. If any doubt, you can ask through comment section.